Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 59 for that topic sexual reproduction in angiosperms. Now in the last lecture we have started this topic up to 57 videos. Human reproductive topic has been covered, you know. Now from 58 we have started this topic sexual reproduction in angiosperms. I have given a list of so many flowers there which are used for different purposes, ornamental purpose and religious purpose and all. Do remember all that. The term also floriculture. Now we have already discussed the structure of flower in the earlier standard, particularly in the 11th science also. When you are discussed one topic, morphology of flowering plant, you must have studied the structural details of the flower. Flower is a reproductive organ, we know. But now in order to continue the story further, how the sexual reproduction occurs in the flower, we should again revise that part very quickly in our mind. समझ में आ रहा है? क्योंकि आगे चल के अभी हमें देखना है फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्टिविटी होती कैसी है. So for that purpose you should know again which is the male sex organ, which is the female sex organ of the flower and all. तो वही पार्ट हम क्विकली रिवाइज करेंगे. We know that flowers are having large number of the varieties there. That enormous number of varieties of the flowers we see there with so many structural modifications and adaptations and all. पर तो भी एक टिपिकल स्ट्रक्चर फ्लावर का जो भी है, जो मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स में है, वो हम पहले लर्न करेंगे एंड दैट इज गिवन देयर. सो हाउ वी कैन डिफाइन फ्लावर? फ्लावर इज डिफाइंड एज ए कंडेंस्ड एंड हाईली मॉडिफाइड शूट ऑफ प्लांट बॉडी विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये एक फ्लावर जो है वो क्या है? फ्लावर इज ए कंडेंस्ड and highly modified shoot. Condensed and highly modified shoot यानी एक ब्रांच. फ्लावर की ये ब्रांच ही माना जाता है उसको, प्लांट का. हाईली मॉडिफाइड, condensed and highly modified shoot of plant body. Okay, which is specially designed for what purpose? For sexual purpose. A typical flower shows three main parts. One is known as pedicel, which is the stalk of the flower, may or may not be present. The other is known as thalamus. Enlarged tip of pedicel is called as thalamus. And third is known as the floral whorls. Okay, generally वो 4 होते हैं. तो यहाँ पे इस फ्लावर में तो पेडिसेल मैंने दिखाया है आपको, ये थैलामस भी दिखाया है आपको. द थैलामस इज द एनलार्ज टिप ऑफ पेडिसेल विच मे हैव वैरायटी ऑफ द शेप्स देयर. सो दैट थैलामस इज जस्ट कंडेंस्ड शूट हैविंग द नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड एट डिफरेंट नोड्स इट प्रोड्यूसेस द फ्लोरल वल्स. ये फ्लोरल वल्स दो टाइप के होते हैं. वन इज कॉल्ड एज द एक्सेसरी फ्लोरल वल्स and other is called as the essential floral whorls. Okay, accessory are non-reproductive, not essential. Okay, और ये जो है वो reproductive floral whorls, essential जो है. वो 4 floral whorls में accessory कौन से है? Number 1 is the calyx and number 2 is the corolla. और इसेंशियल कौन से हैं? दे आर पर्टिकुलरली द एंड्रोशियम एंड व्हाट इज द अनदर इज गाइनोशियम, या गाइनोशियम को हम पिस्टिल भी कहते हैं. इट आल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल. ओके, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम अभी आपको याद आ रहा होगा. कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. आउटर टू इनर अगर जाएंगे कंप्लीट फ्लावर में तो कैलिक्स सबसे बाहर है, उसके अंदर है करोला, उसके अंदर है एंड्रोशियम, उसके अंदर है गाइनोशियम.
Okay. Now out of that calyx and corolla, each member of the calyx is called as sepal. अब यहाँ पे हमने 2 सेपल दिखाए, बाकी 5 हो गए वहां पे, VS लेते टाइम बाकी के कट हो गए. So that number of sepals may be very fine, variable. Okay. Sepals are green structures. They are present at the base of the flower. उसका function तो embryonic stage में protection देने का है. When the flower is in bud condition, we find that the buds are green colored because they are externally covered by the calyx. एक बार bud से flower open हो गया, calyx का रोल खत्म हो गया. So that calyx is green colored member called as the sepal. तो उसके एक एक मेंबर का नाम सेपल है, उस व्हर्ल का नाम क्या है? कैलिक्स. करोला इज द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द फ्लावर. वी नो फूल की जो पेटल्स होती है, तो वो पेटल्स सबसे अट्रैक्टिव होती है, हमें मालूम है, कलरफुल, अट्रैक्टिव, लार्ज. सो फूल पत्ती जो है वो, दैट इज पर्टिकुलरली दैट पंखड़ी जिसको हम कहते हैं पेटल, पाकड़ी फुलाची. They are called the petals. Each member of the corolla is called as petal, and the segment entire whorl is called as corolla. It gives protection to the inner sex organs. अंदर जो डेलिकेट सेक्स ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्लावर. अब यहाँ पे हमने VS लिया है, इसलिए ना तो पूरे 5 के 5 whorls जो है, whorl क्यों कहते हैं? Because they get arranged in the circle. They would have enclosed that part. They are enclosing that part very clearly. So calyx and corolla are their outer protective whorls. And remember my friend, they are called as the accessory floral whorls. Why so? उनको accessory क्यों कहा जाता है? Because they are not directly involved in the sexual reproduction. Even in their absence, the sexual reproduction can occur if androecium and gynoecium are there. एंड्रोशियम गायनोशियम अगर वहां पे है तो कैलिक्स करोला अगर नहीं भी होंगे तो भी रिप्रोडक्शन होने वाला है. ओके. एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सेस. जैसे हमारे व्हीलर्स में रहता है, 2 व्हीलर्स में जो साइड मिरर लगाया है वो क्या है? दैट इज एक्चुअली द एक्सेसरी. अगर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, गाड़ी तो चल सकती है, isn't it? That is called accessory. Then essential or reproductive floral whorls are androecium and gynoecium. Androecium and gynoecium, ये यहाँ पे नाम दिया है मैंने. ये पूरा जो पार्ट है ये 1 2 3 4 5 दिखा है मैंने, ये they are called androecium. And each member of androecium is known as the stamen. Remember, androecium is the male sex organ of the flower. फिर उसके एक एक मेंबर को स्टेमन कहते हैं. आगे चल के हम लर्न करने वाले हैं. स्टेमन के 3 पार्ट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज द फिलामेंट. ये जो दिखाया मैंने, ये पूरा ऐसा स्टॉक के जैसा, वो फिलामेंट. ये ऊपर आने के बाद कनेक्टिव, एंड देन द एंथर. ये जो दिख रहे हैं सोलम, दे आर द एंथर. 2 लोब्स और सिंगल लोब. सो एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव, ये पार्ट है स्टेमन के. तो ये वर्डिंग हमारे दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लो. कई बार स्टूडेंट्स बहुत पजल हो जाते हैं, स्टेमन क्या है, एंथर क्या है, ध्यान में नहीं आता है. स्टेमन इज द नेम गिवन टू द मेंबर ऑफ दैट एंड्रोशियम. ये पूरा स्ट्रक्चर यानी एक स्टेमन, ये दूसरा स्टेमन, ये तीसरा स्टेमन, लाइक दैट. एंड द पार्ट ऑफ द स्टेमन इज फिलामेंट एंड एंथर. And inside that anther, the pollen grains are produced and they contain the male reproductive bodies, pollen grains. इसके अंदर वो पोलन ग्रेन बनते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है, मेल गैमेट्स बनने वाले. एंड देन कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, देयर फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एज द गाइनोशियम. गाइनोशियम इज नोन एज द फीमेल सेक्स ऑर्गन. इट इज आल्सो कॉल्ड द पिस्टिल, यू नो. और उसमें 3 पार्ट्स है. वन इज कॉल्ड एज द ओवरी, अदर इज द स्टाइल, अदर इज द स्टिग्मा. ये ऊपर सबसे ऊपर जो मैंने बताया है वो क्या है? स्टिग्मा. एवरी पार्ट हैज गॉट इट्स ओन रोल. तो ये ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, इसे कहते हैं कार्पेल. ईच मेंबर ऑफ द गाइनोशियम इज कॉल्ड एज व्हाट? कार्पेल. एंड दे कंटेन ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. Inside the ovary, ovules are there.
इस ओवरी के अंदर एक या अनेक ओव्यूल्स हो सकते हैं. अब मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको. दिस इज दैट ओव्यूल. ओके, दिस इज दैट ओव्यूल, which is very important structure, because inside that ovule the female gamete egg is produced. यहाँ पे जो एंथर है वहां पे क्या होने वाला है? पोलन ग्रेन्स विल बी रिलीज. These are the pollen grains. Okay, and that pollen grains are very important. ये pollen grains तैयार करेंगे मेल गैमेट्स को, and then whenever the male gamete of the pollen grain will unite or fuse with the female gamete of the egg of the ovule, then that will cause the fertilization. तो वो पूरी स्टोरी हमें देखनी है, यानी पढ़नी है. ओके, देखेंगे कैसे. We have to learn all that part in detail. But for that purpose, whatever the quick revision I have given to you that you have studied in 11th science for structure of flower is very important. So do rewind this lecture there. उसको फिर पीछे जाके देखो और पूरे टर्म्स अच्छी तरह से याद में रखो. 4 वर्ड्स कौन से है? ये इसेंशियल वर्ड क्यों कहा है इसको? बिकॉज विदाउट एंड्रोशियम एंड गायनोशियम रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वुड नॉट बी पॉसिबल. वो पॉसिबल ही नहीं है. दैट्स व्हाई दे आर इसेंशियल. जैसे हमारे टू व्हीलर में अगर हम एक टायर निकाल के रख देंगे, वो टू व्हीलर चलेगी क्या? नहीं. सो दैट टायर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसेंशियल पार्ट टू रन द व्हीकल. वैसा है, एंड दैट्स व्हाई दे आर इसेंशियल, दे आर एक्सेसरी. तो अच्छी तरह से लर्न कर लो ये पूरे टर्म्स. सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल, वॉट एवर दे, उनके फिर पार्ट्स जो है स्टेमन के, कार्पेल के, वो अच्छी तरह से याद कर लो. दैट यू हैव टू लर्न in the next part. Okay, so I am confident that you must have understood this revision. Don't ignore this lecture. Do watch again and again, and do share to your friend circle also. So do subscribe to my XIIth Biology and XIIth Biology Shorts channel. Thanks a lot.